Hello everybody, welcome to Megha Discourse, and today's video is really special because in this video our topic is William Shakespeare's tragedies, and in this the two tragedies that we will discuss today are King Lear and Hamlet. And in this video we would be discussing the plot summary and all the characters, and at the same time we would also discuss sources and criticism of these two plays if there is any, and important scenes, important acts, important quotations, and if there is any movie that has been adapted or are based on these two plays, and the soliloquies of Hamlet, right? Because these are the questions that are often asked in the UGC NET or other English literature exams, teaching exams, है ना? So this would be our focus because it is really important that we do cover Shakespeare strategically, क्योंकि शेक्सपियर का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम शेक्सपियर का जो टॉपिक पढ़ें तो हम बहुत ही एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, right? So this video will be a wholesome video and it would be a totally game changer for you in the way you look at the literature form from the eyes of Shakespeare. So let us just start. So here is our first play और वो है हमारा King Lear, and the full name of this play is The Tragedy of King Lear. तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है. And then let us talk about some facts that are related to this play. तो सबसे पहले we should know that the play was written around 1606, early 17th century. 1606 से 1607 and 8 के बीच में this play was written and it was finally published in 1608. Okay, so 1608. So you have to remember this fact. Okay, so ये हमारा first PYQ है of the NET examination. Secondly, हम देखते हैं द सेटिंग. ओके, सो द सेटिंग इज प्री रोमन ब्रिटेन. सो इट इज अ प्री रोमन ब्रिटेन है, ठीक है, जब वहां पे देयर वाज एन इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन एम्पायर. ओके, एंड मेनली द सेटिंग वुड बी मेनली द डोवर. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द डोवर ऑल्सो. तो डोवर एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, एंड तो ये कुछ सेटिंग्स हैं एंड द अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन में भी इसकी सेटिंग रहती है, ठीक है. अब हम बात करते हैं सोर्सेज की. सो व्हेन इट कम्स टू द सोर्सेज ऑफ दिस प्लेस, तो यहाँ पे शेक्सपियर ने अपने प्लेस को बनाने के लिए बहुत सारी जगह से ही हैज अ स्टोलन थिंग्स फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, लाइक द स्टोरी लाइन होगी, द कैरेक्टर्स हो गए. सो ही इज अ थीफ, बट वी वुड नॉट कॉल हिम थीफ क्योंकि वो एक नेचुरल जीनियस है ना. क्योंकि इफ यू आर एबल to steal things from different places, and if you have a talent of assimilating all these things and एक इस तरह से एक खूबसूरत प्ले बनाना, producing such amazing plays, ये this is the characteristics of being a genius, natural genius. So this is based on Holinshed's Chronicles, ठीक है. राफेल हॉलिनशेड ने Chronicles लिखे थे जिसके अंदर he has collected some stories of Britain, कुछ myths हैं, कुछ old stories होगी, तो वहाँ से एक book में से इन्होंने he has picked up this matter. And also it has been said कि Historia Regum Britanniae जो है which was written by Geoffrey of Monmouth, and I hope that you are already familiar with this name from our Anglo-Norman literature. So if you have not watched that video तो you can go and watch. तो उन्होंने ये एक हिस्टोरिया रेगम ब्रिटनी लिखी थी जिसके अंदर ही हैज कलेक्टेड दी ब्रिटिश स्टोरीज बहुत सारी हैं, तो वहां से भी ऐसा कहा गया कि उन्होंने ही हैज पिक्ड द मैटर. एंड दिस इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय एनोनिमस प्ले द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर. और इसके आगे आता है एंड हिज 3 daughters. और डॉटर्स कौन सी हैं ये? गोनेरिल है, रेगन है एंड कोर्डेला, ठीक है. उसके अंदर कोर्डेला है बट यहाँ पे कोर्डेलिया है, ठीक है. सो ये चीज ध्यान रखनी है. सो दीज 3 ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से शेक्सपियर हैज पिक्ड अप द स्टोरी एंड द मैटर, और उसको फिर एसिमिलेट करके अपना टैलेंट उसमें यूज करके उन्होंने एक ये किंग लियर का प्ले लिखा था, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज, द सेटिंग्स एंड द पब्लिश्ड. सो आई वुड रिकमेंड यू टू सिट विद अ ग्लास ऑफ वाटर और बॉटल ऑफ वाटर, बिकॉज ये जो हमारी शेक्सपियर की जर्नी रहेगी, ये जो वीडियो होगी हमारी, वुड बी वेरी अमेजिंग. So now if I talk of the first performance, so first performance was given by Richard Burbage. Now he was one of the most I would say talented actors of London, ठीक है. Was very talented and he was very special for performing the revenge tragedy, and that is why Richard Burbage has also performed as an actor, as a main lead actor in the Hamlet, Othello, Macbeth,
किंग लियर एंड रिचर्ड द थ्री. सो ये चारों ही प्लेस किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के, राइट. एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट पर्सी बिश शेली, जो हमारी पीबी शेली है, हु इज आवर रोमांटिक पोएट, उन्होंने ही हैज सेड अबाउट दिस प्ले दैट द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन, ये जो प्ले है हमारा किंग लियर, दिस प्ले इज वेरी मच मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमन है, एक एग्जाम्पल है ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, दैट हाउ देर इज अ ड्रामेटिक आर्ट जो एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में. एंड दिस ड्रामेटिक आर्ट मतलब एक ड्रामा है, बट इट इज एन आर्ट, द वे इट इज टोल्ड, इसके अंदर एक अपनी ब्यूटी है, एक अपना एक एसेंस है, ठीक है, एक अपना रस थ्योरी जो है, एक रस है इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारा किंग लियर. Okay, so let us just go and look at the characters of this play. So now these are the characters of King Lear. Now I have included all the characters and do not get tensed after looking at this list of characters. ये original text से उठाया हुआ है. दूसरी बात, UGC Net often asks about the characters, जो उनके ब्रैकेट में फीचर्स लिखे होते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में, कौन क्या है, तो वो स्पेसिफिक डिटेल्स पे भी now UGC Net is asking questions जो हमने recent दिसंबर वाले अटेम्प्ट में भी देखे थे. सो हियर वी हैव ड्रामेटिक पर्सोने, जिसमें से द फर्स्ट कैरेक्टर, लेट मी जस्ट क्लीन दिस फॉर यू सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द लिस्ट ऑफ दीज कैरेक्टर्स. सो फर्स्ट वी हैव लियर. नाउ ये जो है हमारा, ही इज द मेन कैरेक्टर यहाँ पे, जिसके नाम पे हमारा वर्क है, ठीक है. तो ये हमारे किंग लियर. ओके, किंग लियर कौन है? ही इज एन ओल्ड मैन, he is the king of Britain, and he has so much property and he wants to get free now, and he wants a retirement now, right? He wants a retirement from all these things. Now he wants to live his life lavishly with his knights, है ना, with the armed men. So what he will do, he has a kingdom and he will divide this kingdom into his 3 daughters, because he has 3 daughters. And वो 3 daughters कौन सी हैं? ये है हमारी ये 3 daughters, है ना. You can see them, daughters of Lear. First we have Gondril. Please remember the sequence. Okay, so Gondril जो है वो सबसे बड़ी बेटी है, she is the eldest one. And then we have Regan, she is the middle child. And then we have Cordelia, she is the youngest one. So remember this sequence also. So King Lear की हमारी 3 बेटियां हम याद रखेंगे, Gondril, Regan and Cordelia. Okay, easy. And now what he will do, he will just ask कि who love me the most, because the daughter who will love me the most will get the most share of the land, right? And his favorite is Cordelia. इसकी favorite कौन सी है? Cordelia है, ठीक है. सो ही इज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट कोर्डेलिया जो होगी वो इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देगी, दैट हु लव मी द मोस्ट. बट व्हाट हैपेंस इज दैट दीज गोनेरिल एंड रीगन विल डू द फ्लैटरी. दे विल से बिग थिंग्स दैट आई लव यू डैड and I love you this much, and so many things that they will say. And what will happen, they will get the share. Okay, but when it comes to Cordelia, when King Lear asks the Cordelia that how much you love me, then she says that how can I love you more than anything else? I will love you as a daughter, because a daughter can love his father like a daughter, है ना. It would be according to the bond. ये सेम लाइन उसने कही, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, एक तरह से जो उनका बॉन्ड है ऑफ अ फादर एंड अ डॉटर, उसी हिसाब से तो आई विल लव यू ना. आई कैन लव यू नथिंग लेस देन दैट एंड नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. But King Lear would not like this reply, because he is habitual of flattery, because a person who is narcissistic or can say egoistic, उसे चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, है ना, तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती. Now what he will do, हमारी कोर्डेलिया कहती है दैट नथिंग, शी विल से नथिंग, कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड आई लव यू एज अ, जो भी बॉन्ड है उस हिसाब से. तो फिर यहाँ पे किंग लियर कहता है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, बिकॉज इफ यू डू नॉट से एनीथिंग, इफ यू डू नॉट से एनीथिंग अबाउट योर लव फॉर मी, तो ठीक है, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना. अब हम और कैरेक्टर्स को देखते हैं. यहाँ पे कैरेक्टर्स, नाउ आई एम गिविंग यू द प्लॉट समरी प्लस कैरेक्टर्स, बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और कैरेक्टर है. किंग ऑफ फ्रांस कौन है? लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर यू. यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, दैट इज किंग ऑफ फ्रांस. अब वहाँ पे क्या होता है, जब द थिंग्स दैट दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो किंग लियर क्या करते हैं, किंग लियर क्या करेंगे, ही विल बैनिश कोर्डेलिया, ही विल नॉट गिव any land, any money to Cordelia, and he will say that you just go and leave this kingdom right now, you should not live here, और वो बैनिश कर देता उसको, ठीक है. और वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट होते हैं किंग ऑफ फ्रांस, और एक होता है ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. ये क्या है, ये सूटर्स होते हैं. सूटर्स कौन है? नाउ दे केम टू मैरी दीज डॉटर्स, टू मैरी दीज 3 daughters, and ये also this Duke of Albany also. Now we have these 4 suitors for these 3 daughters. So now what will happen,
किंग ऑफ फ्रांस होता है, जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी होता है, he will say that Cordelia is not having any land, any money right now, so why should I marry her? So he will reject her, Cordelia, because she is not having money और वो materialistic है. So Duke of Burgundy will reject her. At the same time we have Duke of Cornwall and Albany. Duke of Cornwall जो होगा, he will marry Regan, and Duke of Albany he will marry Goneril, the eldest daughter. Okay, and King of France जो होता है, when he will look at the goodness of Cordelia, that she is not materialistic, she is not doing some flattery just for the sake of land to her father, so he will like this goodness, and he's a very positive character, so he will decide that I will marry Cordelia. तो इस तरह से we have 3 couples. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. Now we are having another character, वो है Earl of Kent, है ना. तो Earl of Kent में अब क्या होगा कि ये जो Earl of Kent है, now when King Lear will banish King of France and Cordelia, that you just leave, और वो दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि वो फ्रांस का किंग है, तो कोर्डिलिया शी विल गो टू हर इन लॉज, वो वहाँ पे फ्रांस में चली जाते हैं दोनों, ठीक है. तो वहाँ पे एक दरबारी होता है, एक हम कह सकते हैं ही इज अ वेरी क्लोज कंपेनियन टू आवर किंग लियर, जो है केंट, एडवाइजर हम कह सकते हैं, ही इज द क्लोजेस्ट एडवाइजर ऑफ आवर किंग लियर. तो ही विल से किंग लियर कि what are you doing? You should not do this. You should not banish your own daughter. This is not something which is very good on your part. तो वो मना करता है. But King Lear, who is egoistic, who wants flattery, तो वो उसकी बात को नहीं सुनता केंट की, and he will banish Kent also. He will also banish the Kent from the Britain Empire. Okay. तो अब क्या होगा नेक्स्ट में हम देखते हैं. वी हैव अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, ये हमारे सब प्लॉट में आते हैं. वी हैव अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, उनका बेटा है एडगर, ठीक है. नाउ एडगर जो है उनका रियल सन है, एंड देन वी हैव एडमंड, ये उनका बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉसेस्टर, ये एक उनका इलेजिटिमेट सन है. ये बात हमें ध्यान रखनी है. तो ये हमारा है सब प्लॉट, ये 3 हमारे आएंगे सब प्लॉट में, ठीक है. तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस सब प्लॉट ऑल्सो, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर्स. सो सब प्लॉट में हम देखते हैं कि सब प्लॉट में वी हैव अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे हैं, एक है एडगर और एक है उनका बेटा एडमंड. नाउ दिस एडमंड इज वेरी मच जेलस ऑफ एडगर, क्योंकि एक रियल सन है और एक इलेजिटिमेट सन है, इलेजिटिमेट. ओके, तो बिकॉज वो खुद को इलेजिटिमेट मानता है, लोग भी द पीपल हु आर दे आर समवॉट बाइस्ड, स्टीरियोटिपिकल हैं लोग, एंड दे डज नॉट लाइक समबडी हु इज इलेजिटिमेट. तो वो जो एक सोशल स्टेटस है, कस्टम्स हैं, और द वे सोसाइटी लुक्स एट द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, तो वो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता. एंड एक तरह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अकॉर्डिंग टू दी बेसनेस. That same word he says again and again in the play, that people consider me bastard, they consider me base, low level, cheap, and because I do not have some good roots. तो he feels that, और वो उस चीज़ को internalize करता है. internalize मतलब he will behave like a bastard. He says that of course I am a bastard. If you are calling me bastard, then okay, I have to behave like a bastard. And what he will do, he will behave like a bastard throughout the play, and you will see किस तरह से he will contribute to the tragic ending of King Lear and the Tortoise and each every other character. So what will happen now? This Edmund will write a letter. He will write a letter, और उस letter में एक बात लिखता है that he will pretend that this letter is from Edgar. Okay, और उस Edgar ने लिखा है that I want to, जैसे I want to kill Earl of Gloucester, जो उसका father है. इस तरह से he would write something, and he will pretend to hide this letter from Earl of Gloucester when Earl of Gloucester will come to his room. तो Earl of Gloucester कहता है कि दिखाओ, what are you hiding from me? तो Edmund will show him this letter that I do not want you to read this letter, but this is the letter, और एडगर ने ऐसा लिखा है, जो बिल्कुल झूठ होता है ना. तो when Earl of Gloucester will read this letter कि oh my own son Edgar, he wants to kill me, तो वो क्या करेंगे, उन्हें गुस्सा आता है. एंड फिर वो क्या करता है, he will again manipulate, he will again tell, now what he will do, he will manipulate Edgar also. वो एडगर को जाके कहता है, he will go and tell the Edgar that father is very angry from you, I do not know what you have done, and there is some person who has spoke some lies about you to the father and about you to the father, so I think you should leave this place and you should go somewhere else disguised with a sword. तो वो एडगर क्या होगा, एडगर वहां से चला जाता है, ठीक है. एडगर विल लीव दिस कोर्ट, और वो वहां से चला जाता है, और वो एक स्वॉर्ड के साथ डिस्गाइज जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर एंड द अदर कैरेक्टर्स, उन सबको शक हो जाता है कि अब तो ये बात पक्का है कि एडगर वांट्स टू
एडगर वांटेड टू किल हिज फादर एंड नाउ हिज फादर नोज एवरीथिंग, तो इसलिए वो भागा यहाँ से। तो एक तरह से ये एडमंड क्या कर रहा है, दिस एडमंड इज मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। तो ये था हमारा सब प्लॉट। एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि एडमंड जो होता है ना, एक बार क्या करता है, व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट टेल एडगर दैट ओ कम फाइट विद मी, और वो क्या करेगा, स्वॉर्ड से फाइट करेगा हमारे एडगर के साथ, फाइट करेगा। और फिर जब व्हेन एडगर विल लीव, व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट स्वॉर्ड से खुद को ही थोड़ा सा कट कर लेता है, इंजरी दे देता है, और फिर अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर को जाके कहता है दैट एडगर हैज डन दिस टू मी। तो उससे भी और सिचुएशन जो होती है वर्स हो जाती है। नाउ वी हैव अदर कैरेक्टर, जिसमें से एक है क्यूरन। नाउ ये माइनर कैरेक्टर है, इतना कुछ इसमें नहीं देखना है। ऑसवाल्ड ये एक स्टीवर्ड है गोनरिल का। गोनरिल क्या करेगी, हम आगे प्लॉट में देखेंगे। ये ओल्ड मैन आता है, ये एक ग्लुसेस्टर की हेल्प करता है। डॉक्टर है ये लास्ट में आता है, हु विल ट्रीट, एक तरह से हील करने की कोशिश करता है हमारे किसको, किंग लियर को, जब किंग लियर की लास्ट में ट्रेजिक एंडिंग जब हम देखते हैं। एंड कैप्टन है एक, और देन वी हैव जेंटलमैन है जो कॉर्डिलिया को अटेंड करते हैं। एक हेराल्ड होता है जो ड्यूल की अनाउंसमेंट करता है, किसके बीच में, बिटवीन द एडमंड एंड द एडगर, जो हम लास्ट में देखेंगे। और ये कॉर्नवाल का सर्वेंट होता है। सर्वेंट कॉर्नवाल क्या करेगा, अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर की आईज निकाल लेता है, ठीक है। एंड व्हेन ही विल डू दिस थिंग, तो जो ये सर्वेंट होता है, ही विल ट्राई टू अटैक हिज ओन लॉर्ड, दैट ओ लॉर्ड व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके से ही विल गिव एन इंजरी फ्रॉम दिस स्वॉर्ड टू दी कॉर्नवाल, जिसकी वजह से कॉर्नवाल भी जो होता है लास्ट में मर जाता है। बाकी ये सारे अटेंडेंट्स हैं। तो आई नो आपने एक तरह से सब प्लॉट समझा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसी स्टोरी को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि फाइनली इन सभी का यहाँ पे क्या रोल रहता है। हियर इज दिस स्टोरी, सो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द मेन स्टोरी जो थी हमारी। तो अब बाकी का प्लॉट हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने फर्स्ट देखा कि किंग लियर जो था, ही वाज एन एजिंग रूलर ऑफ ब्रिटेन, और डिवाइड करता है अपनी किंगडम को 3 डॉटर्स के बीच में, है ना। फिर गोनेरिल रीगन फ्लैटर करती है अपने फादर को विद द लाइज, बट कोर्डिलिया जो होती है वो ऑनेस्टी के साथ रहती है, ठीक है। और केंट उसको डिफेंड करता है। तो दोनों ही यहाँ पे जो केंट है और जो कोर्डिलिया है, दोनों को ही दे विल बी बैनिश्ड। उसके बाद क्या होगा, गोनेरिल एंड रीगन प्लॉट अगेंस्ट लियर। अब क्या होगा, व्हेन दिस किंग लियर ही विल डिसाइड दैट मैं क्या करूंगा, आई विल हाफ ऑफ द टाइम मैं किसके साथ रहूंगा, आई विल लिव विद द गोनेरिल, बिकॉज नाउ ही हैज डिवाइडेड द किंगडम इनटू 2 पार्ट, ठीक है। सो ही डिसाइड्स कि आधा टाइम I will stay here and other time I will stay here with both the daughters, ठीक है, क्योंकि कॉर्डिलिया को तो they have already banished। तो अब क्या होगा, now what will happen, जब he will go to the Goneril, तो गोनरिल क्या करेगी, गोनरिल will not treat his father well, she will tell his father that you have to cut 50% of your attendance nights, दैट आपको अपने नाइट्स जो हैं, जो अटेंडेंट्स आप अपने साथ लेके घूमते हो, दैट यू हैव टू कट देम टू दी हाफ। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, यू हैव टू कट देम टू दी हाफ बिकॉज दे आर सो रूड। वो बहुत ज्यादा रूड हैं, जो आपकी हरकतें हैं, द वे यू लव, द वे यू हैव दिस लाइफ स्टाइल। सो एंड इवन जो उसका खुद का एक ऑसवाल्ड जो है अटेंडेंट गोनरिल का, तो वो भी क्या करता है, ही विल फाइट विद द अटेंडेंट्स ऑफ किंग लियर। तो इसके वजह से एक वहां पे लड़ाई हो जाती है। देन शी विल से टू हिज फादर दैट आई विल कट द 50% ऑफ दीज अटेंडेंट्स। सो इससे नाराज हो जाता है हमारा किंग लियर। तो किंग लियर उसको छोड़ के ही विल कम टू द रीगन एंड नाउ ही विल राइट अ लेटर टू द रीगन दैट आई एम कमिंग टू योर हाउस माई डॉटर। उसके बाद क्या होगा, रीगन विल डू द सेम थिंग। रीगन तो अब कहते हैं कि नहीं, 50% भी नहीं रखने आपको, यू हैव टू लिव अलोन, राइट। तो ये चीज होती है यहाँ पे, बिकॉज गोनरिल ने क्या किया, शी हैज वार्न्ड द रीगन दैट फादर इज कमिंग टू यू ऑल्सो, सो प्लीज स्टे अवेयर। तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक तरह से दे विल डिसीव देयर फादर। सो नाउ वी कैन सी, तो इस तरह से रीगन एंड गोनरिल प्लॉट करते हैं अगेंस्ट देयर फादर एंड आफ्टर गेनिंग द पावर। और उसके बाद लियर विल वंडर इन अ स्टॉर्म ऑन द हीथ। तो एक दिन क्या होता है, ही हैज लेफ्ट द होम, ही हैज लेफ्ट दिस रीगन एंड गोनरिल, दोनों को छोड़ के वो निकल जाता है किसके साथ, विद द कैंट, और एक अपने फूल के साथ वो निकल जाता है, ठीक है, अकॉम्पनीड बाय लॉयल कैंट एंड द फूल। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैंट होता है हमारा, बिकॉज ही वॉज बैनिश्ड, है ना। तो अब ये कैंट क्या करेगा, कैंट विल डिस्गाइज इन ऑर्डर, बिकॉज ही इज लॉयल, तो वो डिस्गाइज कर लेगा खुद को एज कायस में, ठीक है, ये एक नाम बना लेता है अपना और खुद को डिस्गाइज कर लेता है, बिकम सर्वेंट वी कैन से ऑफ किंग लियर, और वो उसकी हेल्प करता है। बट किंग लियर डज नॉट नो कि ये कैंट है, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल है किंग लियर के लिए, और उसको अकेला जाते देख ऐसे तूफान के बीच में, ही विल फील सम पिटी। नाउ एडमंड डिसीज हिज फादर ग्लोसेस्टर इनटू बिलीविंग एडगर। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
का इलेजिटिमेट जो ब्रदर है इस प्लॉट कर रहा है उसके अगेंस्ट, एडगर फ्लीज डिस्गाइज। एडगर भी यहाँ पे डिस्गाइज निकल जाता है क्योंकि एडगर को डर है दैट हिज फादर विल किल हिम, बिकॉज उसको लगता है कि उसके फादर उससे किसी चीज को लेके गुस्सा है। लेकिन ये सारी प्लॉट किसने करी है? ये एडमंड ने करी है। नाउ व्हाट विल हैपन? कोर्डेलिया रिटर्न्स विद एन आर्मी टू हेल्प हर फादर। अब यहाँ पे पहली बात तो प्लॉट मिक्स हो जाएंगे। प्लॉट मिक्स कैसे होते हैं? लेट मी टेल यू। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तरफ था हमारा अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, दूसरी तरफ है हमारा किंग लियर। अब ये दोनों कैरेक्टर्स दे आर ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टर, है ना। एक तरह से इसको भी अपने सन से धोखा मिला है एक तरीके से, और इसको अपनी डॉटर्स से धोखा मिला है, और दोनों ही अब बाहर निकल चुके हैं, एक तरह से अपने घर के बाहर है। ठीक है, ये एक स्टॉर्म सीन आता है यहाँ पे, स्टॉर्म सीन आता है, ठीक है, जहाँ पे एक हीथ होती है, एक क्लिफ होती है, उस क्लिफ के ऊपर दे विल गो with the cat and the fool, or he will cry. He cannot bear the pain that his daughters has given to him. He has given everything, the land, to his daughters, and now what their daughters are doing, they are not giving him any lifestyle attendance, कुछ भी नहीं दे रही है, and एक तरह से they have betrayed their father. और यहाँ पे हम देखते हैं अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर जो है, he thought that Edmund will be of good for them, लेकिन अब क्या होगा? When Earl of Gloucester gets to know about the reality of King Lear, that King Lear को ऐसे हुआ है, उनकी बेटियों ने, they have cheated him, तो he will go and try to help this King Lear. But यहाँ पे अब क्या होगा? This same Edmund, the bastard son, what he will do? He will go and tell the Cornwall and Regan, husband and wife, because now they are the, because now they have the 50% land, तो इस 50% के ऊपर इनका सोल अपना एक ऑनर है ना, they are the sole owner of this 50%. So Edmund will tell them that my father, Earl of Gloucester, is is loyal to King Lear. एक तरह से देशद्रोह है वो, because वो King Lear के साथ मिला हुआ है. So now what will happen? This Cornwall and Regan ये क्या करेंगे? They will Earl of Gloucester के पास जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे? इसकी जो आईज होती हैं, आईज को निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल विल इसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड रीगन जो कहती है वो कहती है कि दूसरी आंखें भी पिक आउट कर लो, तो ये दूसरी भी इसकी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीन होता है, एंड समहाउ ही विल ट्राई टू हेल्प दी आवर किंग लियर, है ना। और उसके बाद इसकी जो हमारे अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, इसकी हेल्प कौन करेगा? इसकी हेल्प करता है टॉम, पुअर बेडलम टॉम। और ये कौन है? ये वो डिस्गाइज्ड एडगर है, ठीक है, बिकॉज ही लव्स हिज फादर, तो वो भी क्या करेगा? ही विल हेल्प हिज फादर, और वो उसको वहां पे से लेकर जाएगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम द कैंट, he will send a letter and a ring to this Cordelia about the happenings of this England, that the father have been thrown out from the kingdom and Goneril and Regan have cheated their father. तो कोर्डेलिया जो होगी, कोर्डेलिया अपने हस्बैंड के साथ हुई किंग ऑफ फ्रांस, उसके साथ मिलकर शी विल वेज अ वॉर अगेंस्ट दिस किंगडम, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगी लड़ाई, ठीक है। एंड व्हेन रीगन एंड गोनेरिल गेट्स टू नो कि कोर्डेलिया ने वॉर एक तरह से अनाउंस कर दी है, तो वो रेडी हो जाते हैं वॉर के लिए। और साथ में हम क्या चल रहा है, एक और चीज जो है वो साथ में चल रही है, वो ये होती है कि एडमंड जो है, दिस एडमंड इज हैविंग एन अफेयर विद बोथ द डॉटर्स गोनेरिल एंड रीगन, जिसकी वजह से लास्ट में हम क्या देखते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में क्या होगा? गोनेरिल क्या करेगी? व्हेन दे गेट टू नो अबाउट द लव अफेयर, दैट दे आर हैविंग द लव अफेयर विद द सेम पर्सन, तो जब गोनेरिल को पता चलता है आउट ऑफ ज्वेलसी, वो क्या करती है? शी विल पॉइजन रीगन, एंड रीगन मर जाती है एट द एंड। और गोनेरिल भी जो होती है वो भी क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है, ठीक है। इसका हस्बैंड होता है ड्यूक ऑफ एल्बनी, को ज्यादा कुछ पता नहीं होता अबाउट द हैपनिंग्स एंड द मैनिपुलेटिव बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ, बट स्टिल ही इज वेरी मच अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। When it comes to this plot, तो हम यहाँ पे देखते हैं कोर्डेलिया हेल्प करने के लिए अपनी फादर की आती है अपनी आर्मी के साथ, वो रिकनसाइल करती है लियर के साथ, हु रिग्रेट्स हिज पास्ट एक्शंस बट दे आर कैप्चर्ड। और फिर बाद में अ डेडली राइवलरी होती है बिटवीन द इविल गोनेरिल, रीगन, एडमंड, एंड एडगर जो होता है कन्फ्रंट करता है अपने ब्रदर को। यहाँ पे एडगर वर्सेस एडमंड की भी लड़ाई होती है, जिसके अंदर दिस एडमंड विल लूज द बैटल और ये मर जाएगा। बट बिफोर दैट व्हाट ही विल डू, एक तरह से ये एक ऑर्डर पास कर देता है टू एग्जीक्यूट, क्योंकि देर वॉज ए बैटल, है ना, कोर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस के साथ एक बैटल वॉर
अनाउंस करती है अगेंस्ट द किंगडम, जिसमें से ये जो कॉर्डेलिया होते हैं वो हार जाते हैं एक तरीके से। एंड जो एडमंड होता है वो एक एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर ही विल पास टू एग्जीक्यूट कॉर्डेलिया, राइट, टू एग्जीक्यूट कर दिया, क्या पनिशमेंट होती है उसकी, दैट शी हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, हैंग्ड, जो भी। तो अब क्या होगा लास्ट में, एक ट्रेजिक एंडिंग ये होती है कि दिस कॉर्डेलिया विल डाई, this king Lear will get to know about the Cordelia, that she has saved me, she called to the doctor and she has tried to save me, और मेरी बाकी daughters ने मुझे धोखा दिया, तो he will cry and उसे पता चलता है that Cordelia has also been executed, जिसके अंदर he could not save Cordelia। लास्ट में क्या होगा, Cordelia will die and this King Lear will also die and the play ends tragically with Kent and Edgar left to restore order in the broken kingdom। and लास्ट में हमारे पास कौन कैरेक्टर्स बचेंगे, हमारे पास जो कैरेक्टर बचते हैं वो एक तो होता है केंट और एक हमारा बचता है वो है हमारा एडगर, ठीक है। सो ये दो ही कैरेक्टर बचते हैं, जिसमें से भी केंट जो होता है, एक ऐसा डायलॉग आता है दैट आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल बिकॉज आई विल गो समवेयर, तो वो भी कहीं जा रहा है, अब ये नहीं पता दैट इफ ही इज गोइंग टू डाई और सम अदर वर्क। तो इस तरीके से देयर इज अ ट्रेजिक एंडिंग वेयर ऑल द कैरेक्टर्स डाई and we get the moral to learn a lot। we have covered all these characters and also the plot summary and the story। now it is time कि हम कुछ important scenes को discuss करते हैं जो हमारा हमेशा नेट में पूछे जाते हैं। so first we have the most important scenes exam focus के हिसाब से जो मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पे, that is act 3 scene 2, जिसके अंदर there is a storm scene जहाँ पे the King Lear has been banished, एक तरह से King Lear has left the daughters and वो निकल जाता है अपने हीथ पे, एक क्लिफ पे, एक माउंटेन पे, है ना। एंड उसको हम एक स्टॉर्म सीन बोलते हैं जहाँ पे किंग लियर की जो माइंड है, द बिट्रियल, द धोखा जो है किंग लियर को जो मिला है, द बिट्रियल दैट ही हैज फेस्ड, वो माइंड इसका कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पे इसको ही गेट्स टू नो अबाउट द रियलिटी दैट द पर्सन ही हैज ट्रस्टेड द मोस्ट, हिज डॉटर्स गोनेरिल एंड रेगन, दे हैव बीट्रेड हिम, बट कोर्डेलिया जो है वो अभी भी एक लॉयल डॉटर थी उनके लिए, ठीक है। उसने बिल्कुल सच और प्रैक्टिकल बात कही, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक स्टॉर्म सीन था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है, ये नंबर ही आपको याद रखने हैं। पुअर टॉम भी होता है यहाँ, एक पुअर टॉम जो है वो भी हमें याद रखना है, जहाँ पे एडगर डिस्गाइज करता है एज अ पुअर टॉम या फिर टॉम बेडलम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये रहा हमारा टॉम कॉल्ड फिलोसफर, और इसको यहाँ पे फिलोसफर बोला गया है। एंड यू माइट बी नोइंग कि जो शेक्सपियर के फूल्स होते हैं, दे आर सो वाइज, सो इंटेलिजेंट नहीं होते, कहने में वो फूल है, बट दे हैव द मोस्ट आई कैन से नॉलेज, उन्हें रियलिटी पता है लाइफ की। एक दूसरा सीन आता है दैट इज एक्ट नंबर 3 सीन 7, जो है ग्लोसेस्टर्स की आई प्लग आउट। ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यू कैन सी दिस, जहाँ पे ग्लोसेस्टर की आईज जो है निकाल ली जाती है, एंड एज आई टोल्ड यू, गोनेरिल कहती है कि प्लग आउट हिज आईज। किसने दी है कमांड? गोनेरिल कहती है इसकी आंखें निकालो, एंड रीगन क्या कहती है कि वन साइड विल मॉक अनदर, कि अब if you pluck out one eye, the other two, then the other eye would mock this eye, तो ये भी निकाल लो। so कॉर्नवेल क्या करता है, कॉर्नवेल will pluck out his both the eyes, है ना। तो ये दो सीन हमें ध्यान रखने हैं। दिस यू कैन सी एज आई टोल्ड यू कि ये है जैसे कि शेक्सपियर क्लिफ है ये हमारी डोवर में, तो दिस इज द सेम क्लिफ ऑफ विच शेक्सपियर वॉज टॉकिंग अबाउट। इस तरीके से क्लिफ होती है जहाँ पे हमने एक ये भी देखा था कि जो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर होता है, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर की हेल्प कौन करता है, उसका बेटा जो था टॉम, जो डिस्गाइज था। एंड अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर जो होता है टॉम को कहता है कि प्लीज टेक मी टू सम क्लिफ सो दैट आई कैन एंड पुश मी फ्रॉम देयर सो दैट आई कैन फॉल एंड आई कैन डाई। बट वहाँ पे क्या होगा, टॉम विल नॉट टेक हिम टू एनी क्लिफ, वो इसको ऐसी किसी छोटी सी जगह पे लेके ऐसे धक्का दे देता है। ही विल पुश हिम थोड़ा सा, अ लिटिल बिट, एंड ही विल फॉल बट ही विल नॉट डाई, राइट। बट एंड देन ही विल टेल the Earl of Gloucester that ripeness is all, that you have to be ready for the life, and I made you fall from the cliff but you did not die, so at least he is helping him। तो ये है जैसे एक क्लिफ है which Shakespeare was talking about। एंड देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये किंग लियर विल से दिस थिंग टू his daughter Cordelia, that if you do not say anything then you will not get anything। How sharper than the serpent's tooth it is to have a thankless child। ये Goneril and Regan के बारे में किंग लियर बोलता है one scene 4 में, that you are a thankless child। एक तरीके से मतलब this is a bad fortune, that's हम अपने चाइल्ड को इतना सारा लैंड दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, we are giving love, money, affection, so many things to our children and they are not even
thankful for all these things. So this thing is very sharp, even sharper than the serpent's tooth. Blow winds and crack your cheeks, rage and blow. ये एक storm scene जो आता है Act 3 Scene 2 में, very important. तो उसके अंदर ये line आती है that winds, the nature, blow and crack your cheeks, rage, blow, because उसका mind जो है it is full of conflict and he wants कि nature should also cry with him. आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट सिनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है 3 Scene 2 में आती है, जहाँ पे वो कहता है कि ऑफकोर्स आई हैव डन समथिंग बैड एंड दैट वॉज कि मैंने कोर्डेलिया पे विश्वास नहीं किया. आई डिड नॉट ट्रस्ट कोर्डेलिया एंड आई बैनिश्ड हर आउट. आई बैनिश्ड केंट आउट फ्रॉम दिस किंगडम एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग गुड. तो मैंने सिन तो किया है, बट आई हैव बीन सिंड मोर अगेंस्ट सिनिंग. बट जो नेचर मेरे साथ सिन कर रही है, आई एम a man more sinned against than sinning. ठीक है, मैंने जितना बुरा किया लेकिन उससे ज्यादा बुरा द नेचर इज डूइंग मोर सिनिंग टू मी बाय गिविंग मी दिस ट्रीटमेंट. यहाँ पे बारिश हो रही है, ठंड है, एंड आई एम जस्ट हेयर विद माई फूल एंड दिस डिस्गाइज्ड chaos and I have nothing. I used to have so many attendants, so many people with me. मेरे पास लग्जरी होती थी एक टाइम पे. Now I am having nothing. As flies to wanton wise are we to the goats, they kill us for their sport. Very important line. एंड ये लाइन है हमारी, ये लाइन कहीं ना कहीं हमें थॉमस हार्डी की फिलॉसफी भी बताती है पेसिमिज्म की, एंड ही विल यूज दिस लाइन, है ना. ग्लूसेस्टर बोलता है Act 4 Scene 1 में, व्हेन ही गेट्स टू नो अबाउट द रियलिटी क्या है, अबाउट द, जब वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड उसी के साथ हेल्प करने के लिए टॉम होता है, बेगर होता है जो डिस्गाइज है, और उसको नहीं पता कि ये एडगर ही है मेरा बेटा. तो वो कहता है कि एज फ्लाइज टू wanton boys, जिस तरह से फॉर द बॉयज देर आर फ्लाइज, बिकॉज इन दी चाइल्डहुड व्हाट वी यूज्ड टू डू, इफ वी गेट सम फ्लाइज एंड वी विल कैच द फ्लाइज लाइक दिस, वी विल प्ले विद दोस फ्लाइज. तो इसी तरीके से वी आर अ स्पोर्ट फॉर द गॉड, ऑल्सो कंसिडर एज फ्लाइज, और वो भी हमारे साथ ऐसे ही खेलते हैं. ठीक है. Then we have ripeness is all now. The Edgar ये बात किसको बोलता है? Gloucester को. When Gloucester will tell Edgar कि I want to die, तो कहीं ना कहीं Edgar भी he will tell his father that ripeness is all, that life is like this and you have to live and you have to be ready for everything, whatever life throws at you. All, oh, you are man of stones, she's gone forever. Act 5 Scene 3. Very important line. ये एक tragic ending दिखाती है King Lear की, when Cordelia जो है she will die and he cannot accept this pain, accept this tragic ending. तो तब he will tell the nature that whole, please speak, scream, and you are all the man of stones, because nature है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ है जो जिंदा है अभी भी, फ्लावर्स एंड माउंटेन्स हैं, वो सब जी रहे हैं, वो सब जिंदा है, इतने लोग जिंदा है. ठीक है, बट आई वॉन्ट कि तुम भी रो मेरे साथ. यू कैन नॉट बी अ मैन ऑफ स्टोन जो bereaved of all the emotions. You have to show your emotions, your expressions, you have to cry with me. She is gone forever. वो हमेशा के लिए चली गई है. This you can see, अपनी बेटी को ऐसे उठा के he will say these things and he is crying and he is regretful of this thing. और यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं उनका कि किस तरीके से उन्हें जो फ्लैटरी थी वो बहुत पसंद थी. ठीक है, बट एंड में उनके साथ उनका डाउनफॉल होता है. Then we have this important adaptation and parodies questions. UGC नेट में यहाँ से आते हैं. तो important adaptations क्या है? तो we should know that नेहम टेट ने एक The History of King Lear लिखी थी. ठीक है, और History of King Lear में नेहम टेट ने इस किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी थी. वी शुड नो दिस थिंग. ठीक है, हैप्पी एंडिंग में क्या होगा? यहाँ पे जो एडगर होती है एंड कोर्डेलिया होती है, दे वुड बी लवर्स. ठीक है, तो इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग वहाँ पे हमें देखने को मिलती है. एंड दूसरे आपको याद रखना है, एडवर्ड बॉन्ड ने भी एक लियर नाम का ये प्ले लिखा है 1971 में. ये एक पॉलिटिकल एक तरह से इंटरप्रिटेशन है इसकी. देन वी हैव अल्फ्रेड जैरी जिसने उबू रॉय लिखा है. उबू रॉय में भी देयर इज अ मिक्सचर. इसमें जो है जो इसका हैमलेट है, मैकबेथ है और ये किंग लियर होगा, इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट किया गया है, पैरोडी की गई है उबू रॉय में भी. और एक उबू रॉय जो है ये एक ऑल्सो एक फोररनर है हमारी एब्सर्ड थिएटर का. वी शुड नो, है ना. तो वट एवर आई एम टेलिंग यू, गो एंड सर्च ऑन दी गूगल. थोड़ा सा अपने लेवल पे भी आप रिसर्च करें. और ये हमारा एक PYQ भी है. इसमें से मतलब वट एवर आई हैव इंक्लूडेड इन दीज स्लाइड्स मोस्टली जो है इसमें से PYQ ओरिएंटेड चीज़ें हैं. ठीक है, बहुत ही एक स्पेशल कंटेंट जो है वी आर क्रिएटिंग फॉर यू, है ना. हमारी हर वीडियोस में आप देखेंगे वेदर शी इज मेघा मैम और मी, वी आर इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आती हैं. देयर इज नो बीटिंग अराउंड द बुश. जॉनसन व्यूज ऑफ प्रेफेस टू शेक्सपियर. सैमुअल जॉनसन ने प्रेफेस टू शेक्सपियर लिखी थी, जिसमें ही सेड कि जो इवेंट्स हैं आर कॉन्ट्ररी टू नेचुरल ऑर्डर ऑफ जस्टिस. दैट यहाँ पे शेक्सपियर ने क्या किया है? शेक्सपियर हैज़ यू नो
गिवन अ बैड एंडिंग, जहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है। एक ऑर्डर ऑफ जस्टिस जो होना चाहिए था, नेचुरल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, जहाँ पे बैड पीपल जो है, बैड पीपल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड द गुड पीपल है उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट ऐसा जो है शेक्सपियर ने नहीं करा। उन्होंने जो नेचुरल ऑर्डर होता है जस्टिस का, जो न्याय का, जैसे न्याय होना चाहिए, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, कॉन्ट्ररी है, उसके अपोजिट है ये, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्ररी टू रीडर्स होप जी, दैट वी वर होपिंग कि शायद कोडिलिया जो होगी वो जिंदा होगी, एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट नो अबाउट द एडगर या फिर जो भी कैंट है, तो थिंग्स शुड बी रिस्टोर्ड और कुछ होप हो कुछ अच्छी चीज़ की, तो वो भी नहीं होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्ररी टू फेथ ऑफ क्रॉनिकल्स, मतलब जो भी सोर्सेज से, द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द किंग लियर शेक्सपियर हैज डिराइव्ड दिस स्टोरी, so this is even against the chronicles, because in those also there used to be some happy ending and the good were rewarded good, ठीक है। तो these are the things। एंड किंग लियर की लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो ये है मॉडर्न नॉवेल्स बेस्ड ऑन द किंग लियर। तो मॉडर्न नॉवेल्स जो हैं जो इस पे बेस्ड हैं, सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस आल्सो। 1000 Acres 1991 पब्लिश, ये चेन स्माइली ने लिखी थी, ये पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन विनर है, ये हमारी एक जो नॉवल है, ठीक है। ये हेयर यू कैन सी, यहाँ पे एक फार्म होता है, ये एक सेटिंग होती है, ठीक है, किंग लियर की, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव फूल, 2009 का वर्क है, ये क्रिस्टोफर मूल ने लिखा था ये वाला। ये भी क्या है, ये जो नॉवेल्स हैं ये सारी बेस्ड है किंग लियर पे, ठीक है। और 2018 में वर्क आया है वी दैट आर यंग, ये इसकी ऑथर है प्रीति तनेजा, ये इंडियन उसके ऊपर बेस्ड है, इंडियन सेटिंग है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर देवराज का एक करेक्टर होता है, ठीक है। इनमें इन सब की 3 डॉटर्स होती हैं, बेस्ड है इस पे ये वाला, ठीक है। तो ये यू हैव टू रिमेंबर। सो फॉर किंग लियर दिस मच इज अनफ, क्योंकि किंग लियर के लिए हमने कर लिया है ऑल दी कैरेक्टर्स, प्लॉट समरी, मॉडर्न नॉवेल्स हैं, एडेप्टेशंस हैं, मूवीज हैं, इंपॉर्टेंट सीन, एक्ट्स, कोटेशंस, हमने सारा कर लिया है किंग लियर का। नाउ इट इज टाइम कि हम चलते हैं हैमलेट पे। नाउ इट इज टाइम कि हम पढ़ते हैं हैमलेट। नाम क्या है प्ले का, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये पूरा नाम है, हमें याद रखना है। Now it is written, generally believed to be written between 1599 से 1601 and it was published in 1603। तो सबसे पहले हमारा आया है हैमलेट, और उसके बाद 1603 में, और 1608 में हमारा क्या आया है, किंग लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहीं पे याद करते चलो। देन वी हैव शेक्सपियर का जो सन था उसका नाम था हैमलेट शेक्सपियर, ही डाइड इन 1596 एंड इट इज बिलीव्ड दैट द हैमलेट जो नाम है हैमलेट, ये कहीं ना कहीं इस हैमलेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और जो इसके लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें, जहाँ से फ्रॉम द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द विलियम शेक्सपियर हैज डिराइव्ड द स्टोरी, तो जेस्टा डैनोरम जो थी, जो सेक्सो ग्रामेटिकस ने लिखी थी, इस जेस्टा डैनोरम का ही एक पार्ट है, वो है स्टोरी ऑफ अमलेट, ठीक है। ये 12th सेंचुरी का वर्क है, तो यहाँ से हो सकता है उन्होंने ये उठाया हो। एंड एक लॉस्ट प्ले है योर हैमलेट, ये पॉसिबली शायद थॉमस किड का था, जिसने द स्पेनिश ट्रेजेडी भी लिखी है, तो हो सकता है यहाँ से उठाया हो, बट दिस टेक्स्ट डज नॉट सर्वाइव एनी मोर। तो ये कुछ सोर्सेज थे, ये कुछ पब्लिशिंग डेट्स थी दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दी कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास आता है हैमलेट की अगर हम बात करें तो हैमलेट जो है, हैमलेट इज द सन ऑफ ओल्ड हैमलेट, एक बूढ़ा हैमलेट है जो किंग था पहले यहाँ के डेनमार्क का। सेट सीन देख रहे हैं ना, डेनमार्क का किंग था, बट ही वॉज किल्ड। हु किल्ड हिम? दिस क्लॉडियस, ये जो क्लॉडियस है उसका जो भाई है, ब्रदर है, ही किल्ड ओल्ड हैमलेट बाय पोरिंग पॉइजन इन हिज ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ही क्लॉडियस विल मैरी हिज वाइफ जो है गर्ट्रूड, ठीक है। तो और खुद क्या बन जाता है, किंग बन जाता है, और ये हो जाती है, ये तो क्वीन है ही, है ना। तो ये कुछ था। तो इसका बेटा कौन है, हैमलेट सन ऑफ द लेट एंड द नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग, का नेफ्यू है क्योंकि अब कौन किंग है, ये इसका भाई, चाचा, ठीक है। देन वी हैव फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे, दूसरी साइड ही नॉर्वे है, डेनमार्क की अलग एक जगह है नॉर्वे, वहां पे किंग प्रिंस का नाम क्या है, फोर्टिनब्रास। क्या करता है, फोर्टिनब्रास इज अबाउट टू अटैक डेनमार्क, ठीक है, ही इज अबाउट टू अटैक डेनमार्क। और फोर्टिनब्रास जो है इसका भी एक फादर था, हम कह सकते हैं ओल्ड फोर्टिनब्रास, एंड दिस ओल्ड फोर्टिनब्रास वाज किल्ड बाय ओल्ड हैमलेट। तो नाउ ही वांट्स टू टेक द रिवेंज फ्रॉम द डेनमार्क ऑन दिस मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है। देन वी हैव होरेशियो। होरेशियो कौन है, ये हमारे हैमलेट का दोस्त है, ही इज द फ्रेंड ऑफ हैमलेट। अब इसको थोड़ा सा, देन वी हैव पोलोनियस। हु इज दिस पोलोनियस, कौन है, पोलोनियस एक चैम्बरलेन है वहां पे, उसी की इन्हीं की दरबार में ही वर्क्स, एंड उसकी बेटी है दैट इज ओफेलिया, हु इज हैविंग एन अफेयर, लव इंटरेस्ट है ये हमारी किसकी, हैमलेट की, ठीक है।
और एट द सेम टाइम पोलोनियस का एक बेटा है दैट इज लेटिस, ठीक है। दिस लेटिस इज द ब्रदर ऑफ ऑफेलिया, और इसकी बाद में लड़ाई होगी, एक ड्यूल होगा किसके साथ, हैमलेट के साथ, जिसके अंदर दे बोथ विल डाई, ओके। लेटिस इसका सन है, ओके। देन वी हैव वोल्टीमांड, कॉर्नेलियस, रोजनक्रांस, गुल्डनस्टर्न, ऑसरिक, जेंटलमैन, ये सारे कॉर्टियर्स हैं एक तरीके से, जिसमें से रोजनक्रांस एंड गुल्डनस्टर्न ये दोनों कौन है, ये फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हम कह सकते हैं ऑफ हैमलेट, और इनको बुलाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट प्लीज come, and Hamlet has gone mad because his father has recently died and he has gone mad, so please look at the behavior of Hamlet, and as a spy ये काम करेंगे, क्योंकि क्लोडियस इनको बुलाता है और कहता है कि you have to work as a spy, you have to tell us that why this Hamlet is being mad, ठीक है। तो ये दोनों वो कैरेक्टर्स हैं, एंड हम बाद में भी देखेंगे दैट दे रोजनक्रांस एंड गुल्डनस्टर्न प्लस हैमलेट दे हैव बीन सेंट टू दिस टू द इंग्लैंड, जहां पे क्लोडियस जो है वो छुपके से क्या करता है, ही ऑर्डर एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो लिखता है रोजनक्रेंस एंड गुल्डनस्टर्न को दैट किल हैमलेट, एंड वो लेटर जो होगा दैट सेम लेटर वुड बी रेड बाय दिस हैमलेट, और जब इस हैमलेट को पढ़ता है दैट इट हैज बीन ऑर्डर्ड टू किल मी, तो अब क्या होगा, ही विल एक्सचेंज द लेटर्स, ठीक है, ही विल एक्सचेंज द लेटर्स, और उस पर लिख देता है कि रोजनक्रांस एंड गुल्डनस्टर्न हैज टू बी किल्ड। तो अब क्या होगा, जो इंग्लैंड का राजा होगा वो इन दोनों को मार देता है और हैमलेट बचकर आ जाता है, ही विल रिटर्न बैक टू दिस डेनमार्क, ठीक है। ऑसरिक है जेंटलमैन प्रीस्ट हो गया, देन वी हैव मार्सेलस, बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को, ये दो तो ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें से, ठीक है, ये दोनों ऑफिसर्स होते हैं, ये शुरू में हम देखते हैं जब हमारा इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले वी विल सी, एक तरह से गेट कीपर्स होते हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर है फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को का नाम आपको याद रखना है बिकॉज फ्रांसिस्को जो था ओपनिंग में बोलता है हु इज देयर, कौन है वहां पे, ठीक है, द ओपनिंग ऑफ दिस प्ले, ठीक है। तो क्वेश्चन PYQ नेट का ये आता है कि हु इज देयर को किसने बोला, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फ्रांसिस्को। रोनाल्डो है, ये सर्वेंट है पोलोनियस का, बिकॉज जो पोलोनियस है ही विल सेंड द लेटेस्ट टू स्टडी इन द अब्रोड, एंड रोनाल्डो को वो बोलता है दैट यू हैव टू गो विद दिस लेटेस्ट एंड सी वेदर वो कुछ गलत काम तो वहां जाके नहीं करता है, ठीक है। और एक कैप्टन है, कैप्टन कौन है, कैप्टन है फोर्टिनब्रस आर्मी का। नाउ व्हाट विल हैपन, जब फोर्टिनब्रस जो होता है दे आर अबाउट टू अटैक डेनमार्क, तो कहीं ना कहीं से जो फोर्टिनब्रस के भी जो कुछ रिलेटिव होते हैं वो ही विल टेल फोर्टिनब्रस टू नॉट टू डू सो, इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए, एक पोलैंड है वहां पे एक लैंड का एरिया है, तो फोर्टिनब्रस को वहां जाना चाहिए इन ऑर्डर टू विन दैट लैंड एरिया। तो ये अपने 100-200 आदमी को लेके ही विल, उस आर्मी को लेके ही विल गो टू दी पोलैंड और ही विल ट्राई टू डू दैट, बट जब हैमलेट जो था ही वाज गोइंग टू द यूके, एंड व्हेन ही सीज दिस आर्मी कि दिस इज अ पर्सन फोर्टिनब्रस with 100-200 people and he is fighting over such a small piece of land, and here I am, my father is killed, we have been deceived, and my mother has married to the brother of my father, and what I'm doing, I'm just thinking, I'm just delaying, है ना, ये उसका हमेशा होता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, आज नहीं कल, परसों तरसों, कल करेंगे परसों करेंगे, तो ही इज डिलेइंग द एक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है। तो उसके पास ये एक छोटी चीज के लिए भी इतना लड़ रहा है, वो इतना एक्शन दिखा रहा है, इतनी उत्साह दिखा रहा है, बट वट आई एम डूइंग नथिंग, तो उसको एक तरह से रिग्रेट होता है, जहां पे किसकी सोली लकी भी आती है, ठीक है। तो एक कैप्टन होता है इसका फोर्टिनब्रस आर्मी का, ठीक है। इंग्लिश एम्बेसडर्स हैं, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स कौन होंगे, ये जो दो, एक माउस ट्रैप सीन होता है, प्ले विद इन प्ले आएगा यहाँ पे, वेयर दिस हैमलेट विल टेल दी प्लेयर्स कि एक ऐसा प्ले आप क्रिएट करो। द मर्डर ऑफ गोंजागो का भी एक री इंटरप्रेटेड प्ले है जो है हमारा द माउस ट्रैप, और उस माउस ट्रैप में क्या होगा, सेम जो सीन है वो क्रिएट किया जाएगा, हाउ हिज फादर वाज किल्ड बाय अंकल क्लोडियस एंड गर्ट्रूड मैरी हर हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है। तो वो सेम सीन को वो क्रिएट करते हैं, और उस सीन को क्रिएट करने से क्या होगा, there will be some expressions, there will be some feelings that would be triggered in the heart, in the expressions of these uncle, this mother who is watching this play performed। और फिर क्या होगा, when they will watch the play और दे गेट टू नो कि ओहो ये तो मेरी बात हो रही है, ऐसे तो मारा था मैंने इसके भाई को, तो ही विल कैच द पीपल, देयर एक्सप्रेशंस जो उनके फेस पे बनते हैं ना, तो हैमलेट विल कैच दैट, हैमलेट विल टेल ओरेशियो दैट लुक एट दीज एक्सप्रेशंस,
दिस पर्सन इज द कल्प्रिट, दिस पर्सन इज द रियल कल्प्रिट। बिकॉज अगर कोई ओल्ड हैमलेट का जो भूत आके उनको बोल रहा था हैमलेट को कि यू हैव टू अवेंज दिस मर्डर, अवेंज माई डेथ, एक तरह से बदला लेना है आपको, that you have to take the avenge of my murder because I was murdered by my brother and it is your duty that you have to avenge my death, बदला लो। वो क्योंकि भूत बन के आता है शुरू में, वो भूत दिखता है किसको, इनको, ये जो है ना बर्नार्डो वगैरह, इन सबको वो दिखता है। तो अब किसी भूत पे विश्वास नहीं कर सकते ना, इट इज हार्ड टू बिलीव ऑन अ गोस्ट एंड टू मेक इट श्योर कि ये सच में ही ऐसा हुआ है या नहीं, वो इस प्ले को क्रिएट करवाते हैं ताकि ही कैन कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, कैच द रियलिटी, द एक्सप्रेशंस, क्योंकि एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि उन्होंने वाकई में ऐसा किया है या नहीं। फिर हमारी गर्ट्रूड है, शी इज द मदर ऑफ हैमलेट एंड ओफेलिया उसकी लवर है, और ये सारे बाकी माइनर कैरेक्टर्स हैं, और ये गोस्ट है ओल्ड हैमलेट का, ये प्रेजेंट भी होता है प्ले में, ठीक है। तो इस तरीके से लर्न्स फ्रॉम द गोस्ट ऑफ हिज फादर्स डेथ दैट क्लोडियस जो है उसने मर्डर किया है। एक तरह से हम देखते हैं किस तरह से गोस्ट आता है एक हैमलेट का, ठीक है। एंड ये हैमलेट का गोस्ट एक तरह से आएगा एंड ही विल टेल हैमलेट एंड होरेशियो दैट योर अंकल हैज किल्ड मी बाय पोरिंग पॉइजन इनटू माय ईयर। उसके बाद जो हैमलेट होगा, हैमलेट क्या करेगा, वेट अ सेकेंड, हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड। अब वो मैड बनने की कोशिश करेगा बिकॉज उसे पता है रियलिटी, बट स्टिल ही कैन नॉट, जो कह सकते हैं फिट नहीं करवा रहा वो चीज़ों को, तो ही विल प्रिटेंड टू बी मैड बिकॉज वो रियलिटी सबको नहीं बता सकता कि उसको ऐसे उनका फादर दिखा है। रोजेनक्रेंट्ज एंड गुल्डेस्टर्स आर सेंड बाय क्लोडियस टू स्पाई ऑन हिम, कि आपको देखना है दैट व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस, he is behaving like a mad person, there is something, it might be possible that he is plotting something against me or this kingdom। so वो है ना, कहता है ना that there is a reason in his madness, very important line, कि अगर कोई पागल हो रहा है तो उसके पागलपन के पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर है, that there is a reason between somebody's madness, mad person is not mad। after this what will happen, Hamlet stages a play that mimics his father's murder, जो मैंने आपको बताया था द माउस ट्रैप सीन, जिसमें क्लोडियस रिएक्ट करता है गिल्टी और वो उसको देख लेता है क्लोडियस को, ठीक है। और हैमलेट फिर अब क्या करेगा, हैमलेट इंटेंड्स टू स्टडी द क्लोडियस रिएक्शन, वो उसके रिएक्शन को पढ़ जाता है। नाउ ओफेलिया जो होती है, ओफेलिया गोज मैड एंड डाइज क्लोडियस एंड लेट हिज प्लॉट टू किल हैमलेट। अब क्या होगा, आफ्टर वॉचिंग द मैडनेस ऑफ हिज बॉयफ्रेंड, मैडनेस ऑफ हिज लवर हैमलेट, ओफेलिया परेशान हो जाती है। जो पोलोनियस होता है उसका फादर, ही टेल्स ओफेलिया दैट डू नॉट फॉल इन लव विद दिस मैड पर्सन, ही इज गोइंग मैड एंड ही डज नॉट लव यू, ही इज नॉट वर्थ लविंग। तो ओफेलिया को वो कहता है दैट गो एंड रिटर्न ऑल द गिफ्ट्स दैट ही हैज गिवन यू, गो एंड रिटर्न ऑल दीज गिफ्ट्स टू द हैमलेट। बट व्हेन शी विल रिटर्न द गिफ्ट्स टू द हैमलेट, तो अब क्या होगा, अब आता है ननरी सीन। ननरी सीन में क्या होगा, he will scold Ophelia that you should not do this because she is not trying to understand his mind, that what conflicts he has in his mind, that you should go to nunnery, get thee to a nunnery, that you should go to a convent, you do not know anything, you should go to a convent। और उस टाइम पे एक स्लैंग में एक ननरी को एक ब्रॉथेल भी बोला जाता था, और प्लेस फॉर द प्रोस्टिट्यूट्स। तो एक मिसोजिनिस्ट यहाँ पे थीम हमें देखने को मिलती है। ही विल ब्लेम द वुमेन बिकॉज हिज मदर हैज मैरिड टू हिज अंकल। तो एक तरह से पूरी जो वुमेन का समाज है, एक वुमेन जो है उसके अगेंस्ट हमारा हैमलेट चला जाता है, दैट वुमेन इज अ चीटर, दिस ही वांट्स टू से। ही विल टॉक टू द गर्ट्रूड, ही विल टॉक टू गर्ट्रूड हिज मदर। नाउ हिज फादर जो ओल्ड हैमलेट था जिसका भूत आया था, उसने कहा था दैट प्लीज डू नॉट टॉक daggers to your mother, मतलब do not talk ill with your mother, she is your mother, do not behave something bad with her, right? Maybe even if she has done this thing, please do not do this thing with her, do not blame her for anything। So he will talk to Gertrude, and when he was talking to the Gertrude, where he was talking very rudely, he was screaming and he was, वो आर्गुमेंट कर रहा था अपनी मदर के साथ, जोर जोर से बात कर रहा था। और एक तरफ से क्या होता है, गर्ट्रूड एकदम से स्क्रीम करती है, वो एकदम से चिल्लाती है उसकी मदर, और वहां पे एक कर्टेन होता है, उस कर्टेन के पीछे कौन छुपा हुआ है, पोलोनियस। दिस पोलोनियस हैज बीन हाइडिंग देयर इन ऑर्डर टू इट वाज इंटेंशनली, कि इट वाज इन ऑर्डर टू लिसन टू द टॉक्स बिटवीन द गर्ट्रूड एंड दिस हैमलेट, ठीक है। तो जैसे ही वो चिल्लाएगी, पोलोनियस जो है वो हिल जाता है, हरकत में आ जाता है,
ठीक है, और जैसे ही पर्दा हिलता है, एज द कर्टेन गेट्स शेक्ड, दिस हैमलेट विल थिंक कि ये है हमारा क्लोडियस, ये तो मेरा अंकल है, एंड व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट स्टैब दिस पर्सन विथ हिज स्वॉर्ड एंड दिस पोलोनियस विल डाई। ठीक है, एंड व्हेन ओफेलिया गेट्स टू नो about this that his father has died, तो अब क्या होगा, शी विल गो मैड, और वो भी क्या कर लेती है, एक ऐसे तालाब में जाके, एक लेक में जाके शी विल सुसाइड। ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन लेटिस, जो उसका भाई था, ही गेट्स टू नो कि उसकी सिस्टर, उसका फादर, दे बोथ हैव डाइड, तो वो क्या करेगा, अब जो क्लोडियस होगा, क्लोडियस भी जो है उसको भी पता चल रहा है कि जो हैमलेट है उसे सच पता चल गया है ना, हैमलेट नोज अबाउट एवरीथिंग, तो वो क्या करेगा, एक तीर से दो निशाने वाले काम वो करेगा, ही विल टेल द लेटिस दैट इट इज हैमलेट हु हैज किल्ड योर फादर, आई विल अरेंज अ ड्यूल बिटवीन यू एंड हैमलेट। और उसमें अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, एक हमारे पास स्वॉर्ड होगी, एक स्वॉर्ड होगी, ठीक है, एक स्वॉर्ड हम तुम्हें देंगे, एक स्वॉर्ड वी विल गिव टू दी हैमलेट, और जो तुम्हारी स्वॉर्ड होगी उसके टिप पे देयर वुड बी सम पॉइजन, है ना, उस पॉइजन से क्या होगा, व्हेन यू विल इंजर दिस हैमलेट ही विल डाई। एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल तो हमारे पास प्लान बी है, प्लान बी ये है कि हम एक ड्रिंक रखेंगे एंड दिस ड्रिंक विल बी हैविंग सम पॉइजन। ओके, तो either way we have to kill Hamlet, but what will happen at the end, एंड में क्या होता है कि Hamlet fights Letis, Gertrude is poisoned, अब वो Gertrude क्या करेगी, Gertrude गलती से she will drink this poison and she will die। ओके, Hamlet kills Claudius, अब पहले तो ये मर जाती है, दूसरी चीज क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे लेटिस जो होगा अपनी टिप से हैमलेट को वो करेगा तो हैमलेट भी इंजर हो जाएगा, वो भी ही इज ऑल्सो अबाउट टू डाई, और इनकी तलवार जो होती है, इनके स्वॉर्ड गेट्स एक्सचेंज्ड एंड हैमलेट विल आल्सो स्टैब लेटिस एंड ही इज आल्सो अबाउट टू डाई, है ना, तो ऑल दीज कैरेक्टर्स आर अबाउट टू डाई, एंड लेटिस को हैमलेट से लड़वा दिया, हैमलेट को लेटिस से, और जब लेटिस बेहोश हो जाता है तो उसे पता चलता है कि अरे जो हैमलेट की स्वॉर्ड थी उस पे भी पॉइजन था, तो ये लेटिस के अगेंस्ट भी इसने काम किया है, तो तब उन्हें पता चलता है कि वी बोथ हैव बीन डिसीव्ड, और ये सारे कैरेक्टर्स एक तरह से मर जाते हैं। लास्ट में जो जिंदा बचेगा वो होगा हमारा होरेशियो, ये जो होरेशियो होता है, ये होरेशियो, और वहां से कौन आ रहा है, हम वहां से हमारे आ रहे होते हैं, फोर्टिनब्रास आ रहा है, एंड व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम द पोलैंड लैंड लेके, तो वो देखता है कि अरे डेनमार्क में तो सब कुछ खत्म, पीपल हैव डाइड हेयर, तो दिस फोर्टिनब्रास विल गेट टू नो कि यहाँ तो सब खत्म हो चुका है, और द नेक्स्ट किंग कौन होगा, नेक्स्ट किंग वुड बी आर फोर्टिनब्रास, एक तरीके से, है ना, एक तरह से उसके फादर का बदला भी अपने आप यहाँ पे निकल गया। और फोर्टिनब्रास कौन है, ये एक फॉइल है, कौन है, ये एक फॉइल है टू आर कैरेक्टर हैमलेट। तो इस तरीके से हर कैरेक्टर वहां पे मरता है, ओनली होरेशियो एंड फोर्टिनब्रास विल रिमेन, एंड होरेशियो जिंदा है ताकि ये स्टोरी जो है वो सारी ही कैन टेल टू दी वर्ल्ड। नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो हमें याद रखने हैं, तो सबसे पहले हमें याद रखना है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्ट स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। यहाँ पे एक्ट 3 सीन 5 में हैमलेट ये बात कहता है कि देयर इज नो टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई हैव टू टेक द रिवेंज। ठीक है, टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे एक सोलिलकी का पार्ट है हैमलेट का, जहाँ पे वो कहता है दैट वेदर आई शुड लिव और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक द रिवेंज, so whether I should live, I should die, there is an existential crisis because he does not know the goal of his life, क्योंकि एक तरह से उसकी लाइफ का गोल जो था वो अब एवेंज लेना था अपने फादर के लिए, एंड ही इज नॉट एबल टू टेक द एवेंज, बिकॉज जब वो जा रहा था एक बार अपने क्लोडियस को मारने के लिए, अंकल को, तो क्लोडियस क्या कर रहा था, क्लोडियस वॉज सिटिंग एंड नीलिंग इन फ्रंट ऑफ द गोड एंड ही वॉज प्रेइंग, तो उस पोजिशन में ही कैन नॉट किल this uncle, because otherwise अगर आप if you kill somebody who is praying तो that person will go to the heaven, और वो नहीं चाहता था, क्या चाहता था कि this Claudius will go to the heaven। so ये एक सोलिलकी है। और frailty thy name is woman, so यहाँ पे क्या होता है कि when he was talking कि जो woman होती है, how his mother has married to the uncle, तो वो frailty बोलता है, कलंक है,
ठीक है, तो जो ऑल द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो उसके लिए क्या है, इस स्लर को यूज किया गया है। women of this world are like this, they are big cheaters. समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये भी एक कैरेक्टर होता है, वो बोलता है शुरू में जब उनको एक ओमिनियस इस तरह के साइन मिलते हैं दैट अ गोस्ट इज देयर, गोस्ट आया है और वार हो रही है, ठीक है, 14 ब्रास इज ऑल्सो कमिंग फॉर दी वॉर, तो समथिंग इज रॉटन देयर, कुछ फिशी है, देर इज समथिंग दैट इज वेरी बैड इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क एंड दिस स्टेट इज अबाउट टू क्रम्बल, डिस्ट्रॉयड। When sorrows come, they come not single spice but in battalions. कि जब एक दुख आता है, when one sadness comes, तो वो एक नहीं होती, it is battalion, उसकी पूरी आर्मी होती है। थिंक there is nothing either good or bad but thinking makes it so. तो ये भी हमारा कौन बोलता है ये बात को, that there is nothing good and bad, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो उसको गुड एंड बैड बनाता है। द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मेकिंग्स, ये गर्ट्रूड कहती है जब शी वॉज वॉचिंग दी माउस ट्रैप सीन जो होता है, तो वहां पे हैमलेट पूछता है टू हिज मदर गर्ट्रूड दैट डिड यू लाइक द प्ले, बट वहां पे क्या होगा, गर्ट्रूड कहती है दैट लेडी प्रोटेस्ट टू मच। अकॉर्डिंग टू हर, अ लेडी शुड नॉट प्रोटेस्ट इफ शी हैज बीन ऑफर्ड प्लान to marry the brother of her husband if her husband dies, तो उसको वो प्लान को अवॉइड नहीं करना चाहिए and she should not protest. And alas poor Yorick, I knew him, Horatio, और ये यॉरिक का सीन आता है जिसमें he will take the skull of Yorick, जो एक कोर्ट का जेस्टर था, यॉरिक was a court jester, है ना, and he was acquaintance of our Hamlet, and he will take the skull of that Yorick in his hand and he will say that, oh poor Yorick, I knew him, Horatio, I knew this person and this is Yorick. And फिर उसकी soliloquy आती है कि all the things come to the dust at the end everything is dust, everything is temporary, nobody lives, whatever we do, even the Alexander the Great है, बड़े बड़े kings हैं, they will all die one day। तो इस तरीके की एक soliloquy है। some important scenes that we should know, act 2 scene 2 में the play is the thing, जहाँ पे वो बोलता है, जब वहाँ पे उसको आइडिया आता है उसके दिमाग में, he will get an idea that we have to arrange this play, and इस प्ले से ही हम जो कंसाइंस होता है किंग का उसको चेक कर सकते हैं, that what is the reality of this king, whether he has killed my father or not। ठीक है, ये ननरी सीन का है आपका पिक्चर, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 में ननरी सीन आता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अंदर फेमस टू बी और नॉट टू बी की soliloquy आएगी सुसाइड पे, यू हैव टू रिमेंबर। एक्ट 3 सीन 1 प्लीज इन नंबर्स को यू हैव टू रिमेंबर। एक्ट 3 सीन 2 में आता है द माउस ट्रैप प्ले, जो हमारा द मर्डर ऑफ गोंजेगो को मॉडिफाई करके बनाया गया है। एक्ट 5 सीन 1 में द ग्रेव डिगर सीन आता है, जहाँ पे वो यॉरिक की स्कल जो होती है उसको अपने हाथ में लेके बोलता है ये सारी चीजें। ग्रेव डिगर सीन में दीज आर द डिगिंग द ग्रेव ऑफ ओफेलिया एंड हैमलेट does not know कि Ophelia is dead, and when he gets to know that oh this is the grave of Ophelia, so he will go and leap at the body or corpse of Ophelia, and he will tell Laertes that a lover can love 1,000 times more than a brother does, ठीक है, and he loves Ophelia, he confesses it, but now it is of no use। some important things that we have to remember, जो important movies हैं उसके ऊपर जो बनी है वो पता होनी चाहिए। रोजेनक्रैंट्ज एंड गुल्डनस्टन आर डेड नाउ, दिस इज अ नोवेल, ठीक है, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है स्टोरी, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हैमलेट बताया गया है। टॉम स्टोपर्ड ने लिखी है, ये एक पोस्ट मॉडर्न है वर्क है, 1966 याद रखना है। लॉयन किंग है, ये वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी लॉयन किंग, इसके अंदर एक मुफासा होता है, मुफासा सिम्बा, ठीक है, हमारी 1994। हैदर है, ये एक इंपॉर्टेंट मूवी विशाल भारद्वाज की, ये वाली। शाहिद कपूर है इसमें, तबू है, ठीक है, और इसमें आई गेस श्रद्धा कपूर है शायद, तो ये 2014 में आई थी हमारी, ये मूवी भी हमारी हैमलेट पे बेस्ड है। देन वी हैव नटशेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको, इयान मैकवान इसके पोस्ट मॉडर्न वर्क है, ये भी, ये एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर अनबॉर्न एक फीटस, अनबॉर्न फीटस होता है, ये कौन, हैमलेट हैमलेट जो है अपनी मदर की वूम में है, एंड व्हेन देयर इज अ टॉक अबाउट द किलिंग ऑफ हिज फादर, तो वो सारी बात को सुनता है फ्रॉम दैट वूम, ठीक है, ही विल लिसन अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ द किलिंग ऑफ देयर फादर एंड ही लिसन एवरीथिंग, तो एक नटशेल में है वो, ठीक है, और वो सब कुछ सुन पा रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके अलावा वी हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो इस वर्क से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारी आती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थियरी, दैट हु सेड हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो टीएस एलियट ने बात कही थी। एंड इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट दिस, आपको प्लेलिस्ट में जाना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। वहाँ पे मैं आई हैव मेड 4 वीडियोस फॉर क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर देयर वुड बी अ वीडियो जहाँ पे मैंने मॉडर्न क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया है, टीएस एलियट मिलेगा। वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो इसका एक आर्टिस्टिक फेलियर बोला गया है कि फिक्ट और जो फीलिंग्स है कैरेक्टर की, वी कैन नॉट रिलेट इट टू द ऑब्जेक्ट। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में इसने ये बात बताई थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी है? सिगमंड फ्रॉइड ने, जहाँ पे हैमलेट में को कनेक्ट करता है इडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ सिगमंड फ्रॉइड, दैट देयर इज एन इडिपस कॉम्प्लेक्स इन द हैमलेट, दैट Hamlet himself wanted to marry his mother, and that is why he cannot kill King Claudius. उसके unconscious mind में थी, it was in his unconscious to marry his own mother, and that is why he cannot kill King Claudius. ठीक है, तो Oedipus complex क्या होता है? एक रोमांटिक लव इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स एक सन का अपने मदर के लिए, और अगर किसी डॉटर का होता है अपने फादर के लिए तो उसको क्या बोलेंगे वो मुझे कमेंट में आप बताना। अर्नेस्ट जोन ने भी हैमलेट एंड इडिपस एक वर्क लिखा है, एक ऐसे सीरीज का जिसमें फ्रॉइड की थ्योरी को ही हैज डेवलप्ड फर्दर। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। देन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पे भी हम करने वाले हैं सोलिलकीज। तो टोटल इस प्ले में हमारे पास 11 सोलिलकीज हैं, बट जिसमें से 7 सोलिलकीज हैं ये सारी किसकी हैं? हैमलेट की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट को मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो यू कैन रीड। ठीक है, इस स्लाइड का यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड दिस सोलिलकी। थोड़ा थोड़ा आई विल गिव यू द आइडिया, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक्ट 1 सीन 1 में ओ दिस टू solid flash would melt हो and resolve itself into a dew, that ये जो फ्लैश है, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये सब एक दिन this will all get destroyed and we will be nothing। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि है ओ वट अ रोग एंड peasant slave I am, it is not monstrous that this player here। यहाँ पे when he will look at that किस तरीके से जो प्लेयर्स हैं, मर्डर ऑफ गोंजागो के जो प्लेयर्स होते हैं, they are crying for हेक्यूबा, एक कैरेक्टर है, सो दे आर क्राइंग, दे आर प्रिटेंडिंग टू क्राई, बट इवन जो उनकी क्राई होती है वो इतनी रियलिस्टिक लगती है। तो यहाँ पे कहता है दैट they are crying for somebody who does not exist and I am crying for somebody who, but I'm still not able to take the revenge। तो मैं कितना गया बीतता हूँ, I am worse than them। ठीक है, तो what is he to Hecuba and Hecuba to him। Hecuba उसका क्या लगता है और वो Hecuba का क्या लगता है, still they are so much connected and वो इतने action oriented है और मैं नहीं हूँ। तो आई एम अ रोग एंड पीजेंट स्लेव। उसके बाद टू बी और नॉट टू बी वाला आता है इनका, एंड इट इज नाउ वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट व्हेन चर्चेस यार्न, ये सब इसकी सोलिलकी है। अब ये वो वाला जो मैंने आपको बताया था, नाउ ही इज प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट, अगर क्योंकि नाउ क्लोडियस इज प्रेइंग टू द गॉड एंड इफ आई विल मर्डर हिम नाउ ही ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड सो ही गोज टू हेवन, तो वो हेवन में चला जाएगा एंड सो आई एम रिवेंज दैट वुड बी स्कैंड, बट वो एक रिवेंज नहीं होगा। How all occasions to inform against me and spur my dull revenge, what is a man in if his chief good and market of his time be but to sleep and feed। that ये जितनी भी occasions हैं मुझे क्या inform करती हैं, that ये है जब 14 ब्रास जो होता है he is about to attack the Poland, तो वो कहते हैं कि किस तरीके से द थिंग्स द पेटी थिंग्स द लाइफ, जो छोटी छोटी चीजें हैं मुझे किस तरीके से इनडायरेक्ट वो मुझे क्या करिए, इनडायरेक्टली वो मुझे हिंट दे रही है दैट आई हैव ऑल्सो टू टेक द रिवेंज but I'm not able to। So these are all the soliloquies। तो I hope आपको ये चीज़ें सारी informative लगी होंगी। I hope that you find this video very informative। So I hope you have enjoyed this video। इस वीडियो में our team has done a great work and it takes a lot of hard work and I want you कि अगर आपको हमारी videos अच्छी लगती हैं, informative लगती हैं, then please subscribe our channel and also share these videos as much as possible because we are giving quality content। एंड सेट की तैयारी कर रहे हो तो सेट की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं साथ में। ठीक है, मैराथन है जिसके अंदर हम सारे पीवाई की उसको डिस्कस कर रहे हैं, बी इट एनी स्टेट। एंड सेकेंडली ये जो हमारी सीरीज है वो चल रही है फ्री जून 2026 के लिए क्लासेस। तो चाहे कोई भी क्लासेस हो, नेट हो, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी एग्जाम हो, दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल बिकॉज यू नो कि अपनी वीडियोज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं सो दैट अ स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना। और इसी के साथ में 1 या 2 दिन में आई विल मेक अ वीडियो ऑन दी स्ट्रैटेजी, जो आपके लिए अपकमिंग 2 से 3 मंथ की स्ट्रैटेजी आई विल मेक और वी आर वर्किंग ऑन इट। तो
वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और इसके बाद हमारी वीडियो आएगी न्यू अटलांटिस बाय फ्रांसिस बेकन, एंड शेक्सपियर के कुछ और प्लेस, कुछ और पोएम पे भी मैं वीडियो डालने की कोशिश ज़रूर करूंगी। सो थैंक यू।